taken in a wrong way, you will receive that in amplified manner someday. अगर आपके पास से कोई कुछ छीन लेता है, वो गलत तरीके से छीना गया है, इंद्रप्रस्थ जो था वो गलत तरीके से छीना गया था पांडवों से, तो आपको एक दिन फिर से वो मिलना ही है और एम्प्लीफाइड वर्जन में मिलना है। क्योंकि पांडवों को जब मिला महाभारत के बाद तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ नहीं, हस्तिनापुर भी मिला, इंद्रप्रस्थ भी मिला, मत्स्य देश भी मिला, सिंधराज भी मिला, सब मिला। और जितने राजा उस तरफ से लड़ रहे थे उनके जितने राज्य थे वो भी मिले। थिंक अबाउट दिस। सो आपके साथ कोई गलत करके एक चीज लेता है तो आपको रिटर्न में 4 चीज तो मिलनी है। बट नाउ डोंट काउंट ऑल दोस थिंग्स कि मारा 1000 रुपया છે ને એ લઈ ગયો ને મારા 4000 ક્યાંથી આવશે? नो, द वे इज डिफरेंट एंड डोंट नाउ सॉल्व दैट क्वेस्ट। वो उस पे छोड़ो, वो करेगा and he will solve that mystery by his own way. The point is, my dear friends, the Bhagavad Gita is teaching you over here that you yourself is such a huge energy. You yourself is such a huge powerful personality. You don't need any external forces to drive yourself. Try to understand. आपको कोई बाहरी चीजों या अवस्थाओं की जरूरत नहीं है अपने आप को अच्छे मूड में रखने के लिए। अगर आप अच्छे मूड में नहीं है उसका कारण आपका भीतर मन जो है वो परिस्थितियों को ज्यादा करीब बना लेता है, इमोशन से जोड़ देता है परिस्थितियों को, इसीलिए आपका मूड अस्थिर होता है। मारो मूड ऑफ छे। केम बेटा શું થયું? બ્રેકઅપ થયું। અલ્યા એમાં શું બગા? ચિલ માર। તારું નથી થયું ને એટલે તને મારો દર્દ નથી ખબર પડતી। અરે એવું ના હોય, ઇટ્સ ઓકે, ચિલ માર યાર, લાઈફ નો પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ છે। બોલવું ઈઝી છે। તને ખબર છે કેટલા વર્ષથી અમારું રિલેશનશિપ હતું? હા, કેટલા વર્ષથી? 4 વર્ષથી। 4 વર્ષથી રિલેશનશિપ હતું। તો ઠીક છે, ચિંતા ના કરે, એનું એટલું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હશે યાર, અત્યારે કદાચ મૂડ બગડ્યો છે, પછી મળી જશે પાછું, ચિંતા ના કર, બધું ઠેકાણે પડશે એટલે પાછું જ આવશે, તો તારો પ્યાર સચ્ચો છે તો આવશે। આ બધું પિક્ચરના ડાયલોગ છે સર। ખર્ચો કેટલો કર્યો છે ખબર તમને? અચ્છા, તો પ્રોબ્લેમ એ છે 4 વર્ષનો ખર્ચો, એ પ્રોબ્લેમ છે ના સર? એવું નથી યાર, અમારા રિલેશનમાં પૈસા ના આવે। હમણાં તો બોલ્યો ખર્ચો એટલો કર્યો છે। But the point is that the relation which we have for someone, we don't even look at money. जिसके साथ रिलेशन इतना डीप हो जाता है कि हम काफी बार पैसा भी नहीं सोचते। तारा માટે ગાંડું કાઈ પણ બોલ ને, શંભુની કોફી પીવી છે? ચલ। જ્યુસ પીવો છે? ચલ। હક્કા નૂડલ્સ ખાવા છે? ચલ। It's all because you are loving a person. लेकिन अगर दोस्त के साथ जा रहे हो तो એ આપણે ઓલા દિવસે નાસ્તો કર્યો હતો ને એના તારે 350 મને પેટીએમ કરી દે ને, આપણે હિસાબ થયો તો એમાં 50-50 કરવાનું છે ને। અલા તું ઓલી જોડ તો માંગતો નથી, એ અમારો હિસાબ અલગ છે, એ મારી વાલી છે, તો હું તારો વાલો નહીં ના, એની જોડે હું ભવિષ્યમાં લગ્ન કરવાનો છું। અરે તો ત્યારે હિસાબ ના કરતો, અત્યારે તો કર, મારી સામે હું કેમ આવું કરે છે? The point is that you see, जहाँ emotions होते हैं हम हिसाब भी भूल जाते हैं, right? Dear friends, remember, the point is that some days, sometimes in your life, situations are such wherein you think that the person is wrong. Person is never wrong. Situations make person to be interpreted wrong. Okay? और उसके वजह से होता क्या है, इंसान का मूड जो होता है वो मारो मूड ऑफ है। That happens, yes or no? Right? और यही चीज श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हे अर्जुन, अपने मूड को संभालो। Right? Let not the external situation get inside you. Don't attach yourself to the situation so much that you disturb your presence.
Okay, if you disturb your present, you will be affecting your future. सीधी बात है, राइट? अगर आप आज अपने आप को अभी नहीं संभाल पा रहे, आप अपने फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं. If you are not happy, if you are having some issue and you are highly disturbed, રાજ કો આए પગ ના હલાઈને યાર શાંતિ રાખના, મૂડ નથી. રાજ બોલે મારો પગ છે, મારે ધ્રુજારો છે, તો મારો પ્રોબ્લેમ છે યાર, તને શું થયું? તારો મૂડ ઓફ છે યાર, તું ઓલી બાજ બેસ નહીં યાર, હું તને અડતોય નથી, મને ડિસ્ટર્બ થાય મગજમારી ના કર, લાફો માર દઈશ. બોગસ માણસ છે. गया कनाडा, ये भी गया कनाडा, दोनों वहां पे थे. इसको कोई चीज की जरूरत पड़ी, पता चला राज उसी सिटी में है. फोन किया, ए राज हेल्प જોઈએ છે ના, મારો પગ ધ્રુજે છે. See, your present is disturbing your future someday, right? मैं मारे अर्जंट जरूर છે યાર, સામાન્ય મારો પગ હલાઈશ હું અત્યારે, હવે ધ્રુજે મારો પગ, તને હું હેલ્પ નહીં કરું, તું આડો માણસ છે, તારો મૂડ ન હોય તું ગમે તે કરી નાખે. You see, your present is disturbing your future. So that is the reason, let not the situations affect you so much. एक राजा को सोचो, देश में कितना कुछ हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है. मान लो कि जब कोई राजा है, एग्जाम्पल लेट्स से श्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, क्योंकि सो कॉल्ड अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे. तो यहां पे श्री नरेंद्र मोदी है, मोरबी में कोई ब्रिज टूटा, इतने सारे लोग मर गए. मोरबी में ब्रिज टूटा, इतने सारे लोग मर गए. किसी और जगह पे कुछ और दुर्घटना बनी, उसमें कोई और प्रॉब्लम्स चल रही है. बॉर्डर पे कुछ और प्रॉब्लम्स है जो एज ए सिविलियन हमको पता नहीं लगने वाली है कभी भी, वो कुछ और सिचुएशन चल रही है. ठीक है, इस राजा को हर जगह अपनी प्रेजेंस देनी है, यस और नो? यस. अगर वो मोरबी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और इमोशन के साथ जुड़ गए, वहीं पे प्रेजेंस रखी, वहीं पे रह गए, वहीं पे चले गए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका स्क्रूटिनी करने के लिए वहीं पे रह गए, डू यू थिंक ही इज गिविंग जस्टिस टू अदर्स? नो, he has to control the state of emotions very much. तो जब इंसान धीरे धीरे बढ़ते जाता है आगे, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा. सिचुएशन किसी के साथ कैसी भी हो, उस सिचुएशन को अपने मूड पे हैम्पर नहीं होने देना है. उस सिचुएशन को अपने आप में बसाना नहीं है. सिचुएशन अपनी जगह है, वो इमोशन अपनी जगह है, उसको इतना नहीं जोड़ना है कि कोई और भी आपको देखकर बता दे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? क्योंकि हमारे जैसे लोगों का काम ही होता है. क्या होता है? वी यूज्ड टू रीड बॉडी लैंग्वेजेस. अब स्टडी जिसमें किया है वो तो थोड़ा सा क्या होता है, बाय नेचर आ जाता है, सीधी बात है. ठीक है, तो हम लोग बॉडी लैंग्वेजेस रीड करते हैं. तो क्या बंदा जैसे खड़ा है, उसको देखकर हम उसकी पूरी कहानियां बोल देते हैं. ये ऐसे खड़ा है, लेफ्ट लेग पे खड़ा है, राइट लेग पे खड़ा है, कंधा कितना झुका हुआ है, सर कौन सी तरफ मोड़ा हुआ है, ज्यादा इंसान कहाँ देख रहा है, इतने से तो उसका पूरा पन्ना एक बना लेते हैं. तो now what is that? That means that situation wherein you are having something has emotionally so much bonded you and your physique right now is reacting on it. शक्ल देख के मम्मी को पता लग जाता है, बेटा શું ચાલે તારા મનમાં હિલ? મમ્મી કઈ નહીં, કઈ થયું બેટા, કોલેજમાં કઈ થયું? મમ્મી કઈ ન થયું યાર, તું છોડ ને અત્યારે, પતી ગયું, બહુ બધું થયું છે. Right? Mommy is so smart to understand things, right? So the point is, my dear friends, that we have to understand to develop a great control over our life. Okay, over ourselves. Holistic approach towards life. What is holistic? हर मोमेंट को एंजॉय करना है, हर मोमेंट को उस तरफ से देखना है जिससे आप इंटरनली हिल ना जाए. That is very much important. ओके, सहजता से जीवन को देखना और उसे अनुभव करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. शोक हो तो रोना, शोक हो तो रोना, इतना ना रोना कि हम पूरा दिन ही जो है उसको व्यर्थ
बना दे, यू नो, वी जस्ट वेस्ट आवर होल डे। शोक होता है, कोई चीज को, कोई इंसान को खोया तो हम उसके शोक में हो सकते हैं। और वो दिन जब अभिमन्यु था, यू नो अभिमन्यु, बेटा कौन था अभिमन्यु? बच्चों का कनो छोकरो अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु वॉज अर्जुन का पुत्र, राइट। आ बिचारी कैसे हूँ आज आई सर, मैंने कीधो नहीं, मन कोर्स खबर नहोती सर। ओके, सो अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, उसको तो अभी अभी अर्जुन ने खोया। उसको तो एक्चुअली अर्जुन अभी अभी मिला भी था। पूरे 2 साल भी नहीं हुए अर्जुन को अभिमन्यु को मिले हुए। और बाद में अभी तो वो पूरा संतुष्ट नहीं हुआ था अपने बच्चे को देखकर, और खुश होते हुए, बड़े होते हुए उसकी शादी हुई, और उसको अभी तो पूरा सेटिस्फाई नहीं हुआ था। अर्जुन उतरे में तो खो दिया उसको। और अभिमन्यु की हत्या जो हुई थी, that was a terrible death। लेकिन तुरंत ही उस वक्त वो सिचुएशन के साथ अर्जुन इतना जुड़ गया, इतना ज्यादा जुड़ गया, वो भगवत गीता के उन सारे अध्यायों को भूल गया। अभिमन्यु की हत्या को लेकर अर्जुन इतना इमोशनली जुड़ गया कि उसने प्रतिज्ञा ली, कहा कि जयद्रथ का जब तक मैं वध नहीं कर लेता, कल शाम के सूर्यास्त तक अगर मैं जयद्रथ का वध ना कर लूं तो मैं अग्नि प्रतिज्ञा ले लूंगा। कृष्ण बोले सूख चेहल्यान, शांत रहे बेटा, ठंडो पर भगवत गीता મને કશું જ ના સમજાવો કેશવ, અત્યારે મારો છોકરો મરી ગયો છે, આત્માજી સટકલી। बोले आई एम आउट ऑफ माई कंट्रोल। क्रोध उस स्तर पे चले गया, उस स्तर पे चले गया कि बाद में अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध उसको लेना था। बोला कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा, अगर सूर्यास्त तक जयद्रथ खत्म नहीं हुआ तो अर्जुन समाधि ले लेगा। दुर्योधन पार्टी वाज लाइक, आलो भाई पार्टी मनाओ, बॉटल काट बॉटल, मजा आई गई। बोले क्यों, क्या हुआ? एक जोरदार वस्तु है। बोले सूझ है। बोले कि अगर जयद्रथ को अर्जुन नहीं मार पाया तो अर्जुन तो खुद ही मरेगा, और अर्जुन मर गया तो युद्ध का 90% खत्म हो गया। ही इज अ वन मैन आर्मी, राइट? अर्जुन इज वन मैन आर्मी। और दूसरी तरफ अगर जयद्रथ को मार भी दिया तो जयद्रथ को एक ऐसा उसके पप्पा ने वरदान दिया था कि जो भी तेरे वध का कारण बनेगा उसके सर में विस्फोट होगा। पार्टी जोरदार, जीत भी तेरी पट भी तेरा। और हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर सिचुएशन बॉस, गजब। तो ना मरा तो अर्जुन मरा, मर गया फिर भी अर्जुन मरा, ठीक है। लेकिन वो भूल गए कि अर्जुन की जिंदगी का रथ किसी और के हाथ में है, और वो किसके हाथ में है? श्री कृष्ण के हाथ में है। तो जिस स्कूल में ये लोग पढ़ रहे थे, श्री कृष्ण तो उसके पापा रह चुके हैं उस स्कूल में। ऑफ कोर्स ही नोज दैट। अभिमन्यु, इमेजिन करो, वो उन महारथियों का सामना, उसकी जिंदगी का पहला युद्ध था अभिमन्यु का, दैट वाज महाभारत। और पहले ही वॉर में ही इज फेसिंग किनको? कर्ण को, दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, गुरु द्रोण को। सोचो इतने महारथी लोग हैं, कृपाचार्य है, ये सब महारथी लोग हैं जिन्होंने हजारों सेनाओं को मार गिराया है, और उनके सामने ये अकेला 16 साल का बच्चा है और वो उनको लहूलुहान कर देता है। इतने तक कि वो अकेले उस अभिमन्यु का सामना नहीं कर पाए थे, उनको एक साथ मिलकर उनका वध करना पड़ा। ये सारे महारथी एक साथ मिलकर अभिमन्यु को मार गिराया। बाकी 1 to 1 अभिमन्यु was not defeatable। ये सब मिलकर इस पे चढ़ गए और इसको मार लिया। सोचो, ये था 16 साल का बच्चा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु,
जिसको इतने लोग मिलकर मारे, उनको लहू लुहान किया, फिर जाके वो बेचारा मरा। ये तो बच्चा था। सोचो